देश उठेगा, देश उठेगा। देश उठेगा अपने फेरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा, देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा, देश उठेगा। Roll down the red carpet of welcome to everyone gathered here on the occasion of the National Youth Day and the 160th birth anniversary of Swami Vivekananda and the declamation competition. We want the education by which character is formed, strength of mind is increased and the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. A very beautiful, relatable and a deep quote by none other than Swami Vivekananda, the great legend of all times who need no introduction for the society and the upliftment of the poor. Undoubtedly, he is an immortal, powerful leader in the world and who always inspires us to reach the best out of us. It's an honor itself to honor this beautiful audience who has gathered success. The theme of our today's event is women empowerment. So, let me call upon Nancy to present her poem on our today's theme, that is women empowerment. Please give welcome her with a huge round of applause. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Today, I'll be presenting a poem in front of you on the topic A Powerful Woman. She rises from her adversity, but never forgets her origin. She learns from her past and chooses to keep going forward. Even when her steps are heavy, she transforms her pains and sufferings into strength and wisdom. Yes, she may stumble. Yes, sometimes she falls. But just as the sun always rises, she too does a powerful woman. She is equipped with intuition that guides her course like a compass. She strives to learn herself and all that she stands for with a fierce loyalty even when it's difficult. She is not afraid of truth even when it hurts. She is passionate and uses her gifts to inspire and spread the light of love. With a mind of wonder and a heart of goodness, she is grit and resilient. She knows where she is been, where she is and where she is headed to. She uplifts other women and embodies authenticity and humility. She loves deeply, lives with compassion and is relentlessly unapologetic. Swami Vivekananda always said that she is the creator of her own destiny, neglectful of every male mutiny, because all mischief has come to her when man undertook to shape her entity. She is designed to be admired, not always liked. She is fierce, determined and unstoppable.
She is a powerful woman. She is a powerful woman. Thank you. की जिंदगानी में ऐशो आराम काफी है, पर जुनून देशभक्ति को शहादत का आराम काफी। नाम पर भी लड़ते हैं हम, फौजी लड़ते हैं देश के खातिर, बस यही सुकून काफी है। जिक्र अगर हीरो का होगा तो फॉर श्योर नाम भारत के वीरों का होगा। We are proud to welcome Subedar Major Mr. Sunil Kumar Sir. He joined Indian Army as Sipahi in 1995 and bravely fought in the Kargil War, Operation Vijay. On 26 January 2017, he was awarded by the Chief of Army Staff for his services. We welcome you, sir. Please welcome him with a huge round of applause. We also acknowledge the presence of our eminent judges. Our first judge of the day is Mr. Ashok Malik. He is gold medalist in communication technology and has done masters in English. Black belt, expert in karate and martial arts, skydiver and underwater diver, and has served Indian Navy too. Such a multidimensional and diversified personality is present amongst us. We welcome you, sir. Please welcome him with a huge round of applause. Our second judge of the day is Mr. Sahil Kaushik. He has passed class 12 with 95% and class 12 with 90%. And amazingly, he has scored 99.7 percentile in JEE and currently pursuing third year BTech from IIT. He has great interest in Hindu mythology and is an active volunteer and a firm believer of ideology of Swami Vivekananda. Currently interning as an associate to Chief Minister's Office of Haryana, working on the flagship schemes of Haryana as desired by our Honorable Chief Minister, assisting Shri Jayesh Bhave, Director CMGTA. We welcome you, sir. Please welcome him with a huge round of applause. We are also grateful to Amit Grover, sir. He is such a kind-hearted and a humble guy who had helped us making this event possible over here today. His hard-working nature, dedication, and he always spares out time for people and has brought so many changes in his constituencies. So, we also welcome him for his praiseworthy and commendable support. I, on behalf of entire SVA family, once again extend my heartfelt greetings and gratitude to each one of you gathered here. Now, we have our traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati. We pray for your blessings with all humility and respect. Enrich us with wisdom to make the world a better place to live in. May we all live in peace and harmony. Our dignitaries to please come forward and light the lamp. I request our chief guest, Mr. Sunil sir, our judges, Mr. Ashok Malik and Mr. Sahil Kaushik, and President SVA Hisar Vivek Nandini Sheetal to please come forward and light the lamp. Please ma'am, please sir. with an objective to spread the teachings of Swami Vivekananda so that the youth of India can take inspiration from him and grow up as a strong. They can lead India to the path of progress, prosperity and peace. It has two wings, SVA Students Council and SVA Fans Club. And anyone who becomes its member get free books of Swami Vivekananda. As the organization is in infant stage, when we reach in mature stage, we will be working to provide free and quality education to the poor talented children of farmers and landless laborers. And we provide self-defense training to all the girls irrespective of their family background. Similar-minded people can join hands with us. They are always welcome in the organization.
Before advancing further, rules are as follow. There are 3 categories, that are sub-junior, junior and senior. For the sub-junior category, it's for classes 4th and 5th, and the time limit is 1.5 to 2.5 minutes. And the topics are childhood days of Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna Paramhansa, Holy Mother Sri Sharda Devi, and Ramakrishna Mission. For the junior category, it's for classes 6 to 8, and the time limit is 2.5 to 3 minutes. And the topics are Swami Vivekananda's message for the youth, Swami Vivekananda's Dream India. What have you learned from Swami Vivekananda? Contribution of Ramakrishna Mission for the upliftment of the society. And the last topic, Ramakrishna. And for the senior category, it's for classes 9th to 12th, and the time limit is 3 to 4 minutes. And the topics are Swami Vivekananda on importance of learning Sanskrit, Swami Vivekananda on why India should never give up her religion, Swami Vivekananda's concept of patriotism, Swami Vivekananda on the upliftment of lower class, Swami Vivekananda on the glory of Upanishads. And the last topic is Swami Vivekananda's views on the ideal education. Dear participants, please pay attention that there will be deduction of marks if the given time limit is exceeded, and as the time limit is over, there will be a sound of bell. जब time limit खत्म हो जाएगा, bell बजाई जाएगी, मतलब time limit खत्म हो गया है. There is no language barrier, and the decision of the judges will be considered as the final decision. So, all the participants, get ready to declamate your speeches. This day belongs to each one of you, and let's raise their confidence with a huge round of applause. So, finally beginning with our competition. So, we sub-junior category, I would like to call upon Taranjeet Kaur from Delhi Public School. Please welcome her with a huge round of applause. Humanity can do mankind more good than any common person, as such a person can ignite the flame of love and fraternity and transform the whole society into a better one. Respected teachers and my dear friends, today I feel privileged to present my views on such a great devotee, as well as of gold, who is none other than our Holy Mother, Sri Sharda Devi. Born in a poor Brahmin family in 1853, Holy Mother Sri Sharda Devi cultivated all the attributes of virtues like courage, serenity, self-control, compassion, and wisdom. Her vision of flying was clear in the cradle of the poor. Married to Ramakrishna Paramhansa, who was a Hindu monastic and religious leader himself, she got opportunity to propagate her practice. She couldn't rest in herself by getting influenced by his preachings and joined him when she was nearly 18. Moved by Sharda Devi's divinity, Ramakrishna started calling her Sharda Devi, the avatar of the divine mother of the universe, and later she was addressed as the Holy Mother Sri Ma by his followers too. He firmly believed that she was the savior and instigator of truth. For her pure selfless service, Swami Vivekananda regarded her as an ideal for all the women in the modern age. In the history of humanity, there has never been other woman who looked upon herself as the mother of all the beings, including animals and birds, and spent her whole life in serving them as her children, undergoing unending sacrifice and self-denial. Through her pure words and thoughtful actions, she has set many examples for all of us. She has taught that the happiness of this artificial world is transitory. The less you become attached to this, the closer you reach to your goal of existence. On this second note, I rest my case. Thank you. Please ask her. शक्कर और रेत आपस में मिल सकते हैं, किंतु चींटी इनमें से हमेशा शक्कर को चुनती है। इसी तरह पवित्र व्यक्ति बुराई को छोड़कर अच्छाई को चुनता है। धर्म पर बात करना तो आसान है, किंतु
ताड़ना दुर्लभ। आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के नमस्कार। आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आस्था आप सबके सामने श्री रामकृष्ण परमहंस जी हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ना मानो किसी शास्त्र को पढ़ने के ही समान है। उनके जीवन के प्रति एक घटना पाठ्य को कोई ना कोई गहरी शिक्षा दे जाती है। वे भारत के बहुत प्रसिद्ध संतों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद जी इनके विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना। परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम, न्याय और परहित ही है। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था। इनमें आस्था, सद्भावना, धर्म के प्रति अपार श्रद्धा विवेकानंद जी के हर प्रश्न का समाधान कर उनकी बुद्धि को भक्ति में बदल दिया और उन्हें समाज सुधार, समाज में बदलाव व विकास की शिक्षा दी। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। इन्हीं के ही अनमोल विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। मनुष्य तकिए के लिहाफ की तरह है, जिसका रंग लाल, नीला या काला कुछ भी हो सकता है, किंतु सभी के अंदर मिलने वाली रुई एक है। इसी तरह कोई मनुष्य कुरूप है, कोई सुंदर है, कोई पवित्र है तो कोई दुष्ट, किंतु सभी के अंदर एक ही परमात्मा का वास है। धन्यवाद। All power is within you. You can do anything and everything. Good morning everyone. My name is Pooja. Today I am going to share my views on the topic Childhood Days of Swami Vivekanand. Who was Swami Vivekanand? Swami Vivekanand was a Hindu monk and chief disciple of Sri Ramakrishna Paramhans. He was named Narendra at his birth, but the family and friends used to call him Naren lovingly. It is said that great individuals show signs of greatness in their childhood itself. This statement was true for Swami. In his very childhood, he showed glimpses of what he was to become when he grew up. Naren was a gifted child. It was hard to be found. He showed remarkable leadership qualities. He was known for his love for animals and plants. He developed a quest for knowledge, existence of God and other divine mysteries right from his childhood. He was exposed to Western philosophy, Christianity and science. He was active in sports also. Do you know, on the one hand he read Hindu scriptures and on the other hand Western philosophies and spirituality by David Hume, Herbert Spencer, etc. From a young age, he was fascinated by ascetics and meditation. He used to meditate before the idols of meditation experts such as Shiva, Rama and Mahavir Hanuman. Narendra was naughty and restless as a child, and his mother said, "I prayed to Shiva for a son and he has sent me one of his demons." Aside from these outbursts, he was a sunny-tempered, sweet and loving child. To conclude, Swami Vivekananda's name was written in golden letters in the history of India. He was a role model for not only the people of his country, but to the whole world. Thank you and have a wonderful day. Really amazing. Loved it. Okay, so moving towards our next participant, we have Divyansh Sharma. जरा सोचिए, एक 7 से 8 साल का लड़का पेड़ की डाली पर लटक रहा हो और कोई व्यक्ति आए और कहा डरता है। उस उम्र का लड़का या तो डरेगा या उस पेड़ पर कभी नहीं चढ़ेगा, पर ऐसा नहीं था। वो लड़का उसी पेड़ पर लटका रहा और कहा, अगर इस पेड़ पर भूत होता
जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना पड़ता है, बल्कि परीक्षा से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है। आदरणीय निर्णायक मंडल और उपस्थित श्रोतागण, आज मैं लावण्या आप सभी के समक्ष रामकृष्ण मिशन पर कुछ तथ्य उजागर करूंगी। आधुनिक भारत के एक महान विचारक व्यक्तित्व वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म आज ही के दिन 1863 में हुआ। स्वामी जी बचपन से ही वीर तथा रहस्यवादी थे। उन्होंने कई संतों से मुलाकात की और प्रत्येक से पूछा, क्या तुमने भगवान को देखा है? आज वही प्रश्न मैं आप सभी से पूछती हूँ, क्या आपने भगवान को देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, परंतु हम सभी ने भगवान को देखा है, अपने गुरुओं में और अपने माता पिता में। कृष्ण परमहंस ने उन्हें दिया और कहा कि मैं भगवान को वैसे ही देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने उन्हें ईश्वर की अनुभूति करवाई। अपने गुरु के गले के कैंसर के कारण मृत्यु के पश्चात 1886 में ही उन्होंने अपने गुरु के ही नाम पर एक मठवादी व्यवस्था रामकृष्ण मिशन का गठन किया। स्वामी जी ने मिशन के 3 उद्देश्य निश्चित किए। पहला, वेदांत का प्रचार बढ़ाना और तीसरा, गरीबों की सेवा। मिशन का तो ध्येय वाक्य ही है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। इस मिशन ने देश और विदेश में एवं वेदांत का प्रचार प्रसार करके हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। दलित एवं निर्धन लोगों की सेवा, शिक्षण संस्थान, चिकित्सालयों की स्थापना, दैवी प्रकोप, अकाल, भूचाल, बाढ़, महामारी इत्यादि के समय लोगों की तन मन धन से सहायता की। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए स्वामी जी का प्रसिद्ध संदेश, जो वे अक्सर अपने मठ अनुयायियों को दिया करते थे, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इस प्रकार की इच्छा शक्ति रखो, तुम अपना उद्देश्य निश्चित पाओगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम निकिता, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं सबके सामने रामकृष्ण मिशन के बारे में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जो युग प्रवर्तक के रूप में जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल के एक परिवार में हुआ। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी के गुरु श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार के लिए बिल्लूर के पास 5 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन के प्रचार प्रारंभ कर दिए। रामकृष्ण मिशन की भारत के विभिन्न प्रांतों अथवा अमेरिका, फिजी आदि देशों में शाखाएं हैं। रामकृष्ण मिशन ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार करते हैं जिसे सभी धर्म और संस्कृति के लोग अपना सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से उपदेश, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल, बाढ़ व भूकंप के रोगों से पीड़ितों की सहायता का कार्य किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का मानव सेवा में महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष कक्षा 5वीं द अकेडमी का छात्र। आज आप सबको स्वामी विवेकानंद जी की बचपन की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक युग पुरुष के रूप में जाने वाले महान व्यक्तित्व थे। सन 1863 12 जनवरी को जन्मे विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। पिता हाईकोर्ट में वकील व माता गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद जी बचपन में बड़े ही नटखट किस्म के थे। ईश्वर को पाने की ललक व ईश्वर को जानने की इच्छा में अपने माता पिता और अध्यापक से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि हर सभी लोग उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। स्वामी विवेकानंद जी बचपन 8 वर्ष की आयु में वह अपने एक मित्र के घर खेलने जाया करते थे। वहाँ चंपक का एक पेड़ था जिस पर लटक कर वह खेला करते थे। उनके मित्र के दादाजी इस डर में कि इनको चोट न लग जाए वह
स्वामी विवेकानंद जी को समझा रहे थे कि इस पेड़ पर एक दानव रहता है जो पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। स्वामी विवेकानंद जी यह सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे और जैसे ही दादाजी गए वह फिर से पेड़ पर चढ़कर खेलने लगे। यह देख उनका मित्र चीखा, दानव तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, डरो मत मित्र, सोचो दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन दानव के हाथ में होती। इस सब से हमें यह प्रतीत होता है कि स्वामी विवेकानंद जी निडर व उनकी बचपन में उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। स्वामी जी के हमें निडर व बुद्धिशील बनकर रहना चाहिए और अच्छे कार्य करने के लिए समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। तनिष्क कक्षा 5वीं का छात्र आज आप सभी को माँ शारदा देवी के बारे में बताना चाहता हूँ। माँ शारदा थी 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी खुद को साधना में लीन रखते थे। उन्हें सांसारिक जीवन में वापस लाने के लिए उनका विवाह माँ शारदा देवी से हुआ। माँ शारदा देवी एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व की स्वामी थी। रामकृष्ण जी की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने में उन्होंने मुख्य भूमिका में पूरे दिल से आम जनता और महिलाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद जी की योजनाओं का समर्थन किया। माँ शारदा दिल से सिस्टर निवेदिता द्वारा चलाए गए लड़कियों के स्कूल में भी जुड़ी हुई थी। लगातार शारीरिक श्रम और मलेरिया के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वह 21 जुलाई 1920 को उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। माँ शारदा देवी का समाज में अमूल्य योगदान रहा है। उनके द्वारा बताए गए जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण व मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आज मैं आप सभी के सामने स्वामी विवेकानंद जी के युवाओं के लिए संदेश पेश करने जा रही हूँ। भारत का युवा वर्ग प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान भारत तक अगर किसी महापुरुष ने प्रभावित किया है तो वे है स्वामी विवेकानंद जी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। स्वामी विवेकानंद जी की इस ओजस्वी वाणी से न जाने कितने युवकों में ऊर्जा का संचार हुआ। इनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि आज भी वे हर भारतीय युवा के लिए आदर्श है। अगर स्वामी विवेकानंद जी के सोच, विचार और नियमों का कोई युवा पालन करता है तो वे सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को पा सकता है। उन्होंने कई सारे प्रेरणादायक संदेश युवाओं को दिए, जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख कहते हैं कितना अंधकार है यहाँ। अर्थात सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, पर हम उन्हें बाहर ढूंढने का प्रयास यही अर्थों में अपने जीवन को जीता है जो दूसरों के जीवन के लिए काम आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को विशेष तौर पर संबोधित करते हुए कहा, एक विचार लो, उस विचार के बारे में सोचो, उस विचार को अपना जीवन दो, उस विचार को अपना समय दो, उस विचार के सपने देखो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। जो तुम सोचोगे वही तुम हो जाओगे। अगर तुम अपने आप को कमजोर सोचोगे तो कमजोर हो जाओगे। अगर अपने आप को ताकतवर समझोगे, ने कहा कि किसी दिन हमारे सामने समस्या ना आए तो समझ लेना कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है स्वयं के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करना। आजकल की युवा पीढ़ी की वर्तमान स्थिति है, जोश है पर होश नहीं। डिग्रियां ले रहे हैं पर बगैर चरित्र निर्माण के, शारीरिक सौंदर्य को निखारते हैं पर मन की खूबसूरती को नजरअंदाज करते हैं। किंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा कि असली युवा वही है जो दूसरों के लिए काम आता है, जिसके अंदर जोश और होश दोनों ही है। अपने चरित्र का निर्माण करो। अंत में वे कहते हैं, विनम्र बनो, शक्तिशाली बनो, साहसी बनो, जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक है। जय हिंद। Jury members, all teachers and my fellow participants, I wish you all a lovely good morning. Today, on the birth anniversary of Swami Vivekananda, I, Ariana from Small Wonder Public School,
is hereby standing to extend my views on the topic Swami Vivekananda's Dream India. Arise, awake and stop not until goal is reached. This slogan was given by Swami Vivekananda. He used an innovator and a game changer with unique passions and big dreams. His dreams were like a strong and developed India, and youth were his natural hope, to whom he wanted to be physically strong, active and committed. According to him, this is the time to decide your future. The earthly career of Swami Vivekananda started with his birth on 12 January 1863 and ended with his death on 4 July 1902. But during this superhuman energies towards the task of awakening the humanity into its inborn divine nature, which according to him is the only source of one's freedom and equality. Vivekananda, after he became the sannyasi of highly intellect, action and devotion in 1886, had a deep desire to spread the message of divine unity of existence and unity in diversity throughout the country. He used to say, I am proud to belong to a nation which is the shelter of the persecuted and the refugees of all religions and nations of the earth. He was in full of pain to see the nation roll under social injustice, political subjection, economic deprivation of common people, oppression and exploitation, not only by foreigners but also by our own men. He vowed to dedicate. His vision for India was to make society inspired by the vision of dignity of men, his strength and capacity, his freedom and individuality, to love and serve human beings through egalitarian and make societies free from notions high or low. He wanted the education system to be refurbished so that character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and one can on its own feet. Swami Vivekananda's lessons still inspire the youth to incorporate his ideas into their lives. Dream it, live it, that's the secret to be successful. Faith in ourselves and faith in God, that's the secret of greatness. Thank you and wish you to have a pleasant day. अगर बदलना है तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये जुनून से भरे क्रांतिकारी विचार हैं स्वामी विवेकानंद, नीलशीर विवेक निर्णायक मंडल और मेरे सभी प्रतिभागी साथियों। आज के मेरे वक्तव्य का विषय है स्वामी विवेकानंद का युवाओं के लिए संदेश। परंतु स्वामी जी के महान व्यक्तित्व को शब्दों की माला में पिरोना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। स्वामी जी के अनुसार किसी भी देश की सबसे अधिक उन्नति उसके युवा कंधों पर होती है। मगर सवाल यह उठता है या दिशाहीन। वर्तमान समय में भौतिकवाद अपने चरम सीमा पर है और नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है। ऐसे में स्वामी जी के प्रेरणादायक विचार युवाओं के जीवन में संजीवनी का काम करते हैं। स्वामी जी ने युवाओं के संदर्भ में कहा था, युवा वह है जो बुराइयों से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जिसमें होश और जोश दोनों हैं। स्वामी जी के जीवन की एक घटना आपके सामने प्रस्तुत है। जब स्वामी जी शिकागो सम्मेलन से पहले स्टेज के बाहर खड़े थे, तब एक अनजान महिला उनके पास आई। उनके साधारण से वस्त्रों को देखकर महिला ने उनसे पूछा, अभी तो पहन सकते थे। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, सुनिए और युवाओं के जहन में उतर जाए तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। स्वामी जी ने कहा कि आपकी संस्कृति में कोट पैंट आपको जेंटलमैन बनाते होंगे, परंतु हमारी संस्कृति में एक व्यक्ति का चरित्र ही उसे जेंटलमैन बनाता है। आपका चरित्र ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है और युवाओं में चरित्र निर्माण के लिए स्वामी जी से अच्छा और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वामी जी चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति को भी सम्मान दें, परंतु दूसरों की संस्कृति के लिए अपनी संस्कृति को कदापि न छोड़ें। स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को युवा दिवस के रूप में मनाना तभी सार्थक होगा जब युवा उनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर ले, बनाने का प्रयास करें। अंततः मेरे आदर्श स्वरूप स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और यदि खुद पर भरोसा है तो
तो भगवान वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके द्वारा युवाओं को दिए गए कुछ संदेशों की चर्चा करने जा रही हूँ। हर वर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साल 1984 में जयंती पर आज के आधुनिक युग में ऐसे कई युवा हैं जो स्वामी जी की बातों का अनुसरण करते हैं एवं उनके उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी का मानना था कि एक युवा को जीवन में सिर्फ सफल ही नहीं परंतु सार्थक भी रहना चाहिए, जिससे उसके मस्तिष्क, हृदय और आत्मा का संपोषण भी होता रहे। स्वामी जी ने ऐसे कई उपदेश दिए जो आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। स्वामी जी ने साफ कहा था, शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही जीवन है। कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता यदि वह ताकतवर नहीं है। भारत के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी की संकटों से निपटने में मदद करे, चरित्र निर्माण करे, परोपकार की भावना जगाए और सीख की भांति साहस प्रदान करे। उन्होंने बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संधान के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीके बताए। आज यही संदेश और उपदेश आज की युवा पीढ़ी की प्रेरणा का काम कर रहे हैं। अंत में स्वामी जी की ही कुछ नाम देना चाहूंगी। इस ब्रह्म को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, इस ब्रह्म को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो, तुम तत्व। यदि आपका भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। यदि आपका भरोसा अपने आप पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल एवं श्रोतागण, आज मैं जिया फुलरिया आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के युवाओं को दिए गए कुछ उपदेश दोहराने जा रही हूँ। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। वो शिकागो में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। स्वामी जी एक आध्यात्मिक युवा गुरु थे। उन्होंने हमारी मानव सभ्यता को और बेहतर बनाने के लिए आधुनिक पश्चिम मानव व भौतिकवाद को हमारे भारत की संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया था। स्वामी जी का मानना था, अर्थपूर्ण और सफल जीवन तो हम सब जीना चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। वे हारने या असफल होने के डर से प्रयास ही नहीं करते। इसलिए स्वामी जी का कहना था, किसी भी तरह का भय न करो, निर्भय बनो, उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमारा देश, हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, लेकिन फिर भी हमारा देश इतना पीछे है। स्वामी जी के अनुसार किसी भी देश की उन्नति का भार सबसे अधिक उस देश के युवाओं के कंधों पर होता है। मगर क्या हमारे युवाओं के कंधों में इतना सामर्थ्य है कि वे हमारी देश की उन्नति का भार उठा सके? क्या हमारी युवा पीढ़ी इतनी दिशावान है कि हमारी भौतिकवाद अपनी पराकाष्ठा पर है और आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है? ऐसे में जिस तरह हमारे युवाओं में नशे की लत, आत्महत्या, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे देश का युवा दिशाहीन होता जा रहा है। हमारे युवाओं में
एक युवा उनके विचारों को अपने जीवन में बसर कर लेगा। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें स्वामी जी के हर उस स्वप्न को पूरा करना है जो वो हमारे कंधों पर छोड़कर गए थे। हमें हमारे देश को बहुत से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाना है। आशा करती हूँ कि एक दिन हमारा देश भी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से आगे निकलेगा। धन्यवाद। How many of us see Abdul Kalam as their idol? I believe most of us do. But do you know who was his idol? Well, also I guess most of us see Lal Bahadur Shastri and Subhash Chandra Bose as our hero. But do you know who was the hero for them? Yes, obviously, the answer to all my questions is none other than Ramakrishna's chief disciple Narendranath Dutt. With love called Naren and with due respect known around the globe as Swami Vivekananda Sharma. Today I want to present my views on the topic what you learn from Swami Vivekananda. Who among us doesn't know Swami Vivekananda? And when it comes to the lessons that Swamiji taught us, I can recall every positive sentence. He was respectful to his mother, pure in his ideas and clear in his thoughts. As a learner, he was determined to learn. As a teacher, selfless to give. He taught us honesty, focus, courage and what not. Max Muller once said, erasers are made for those who make mistakes. Vivekananda replied and said, erasers are made for those who are willing to correct their mistakes. He says, if you win, you can lead. If you lose, you can guide. To motivate us, he said, you have to grow the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no. He was a great believer of women empowerment. He believed to conquest a country, a women should come forward and speak for themselves. And same we learn from him. The golden rules we learn from him are, who is helping you, don't forget them. Who is loving you, don't hate them. At last that if even 10% of this world's population follow his footsteps, the world would be no less than heaven. Now, if I am asked to describe Swami Vivekananda in one word, it would be Swami Vivekananda itself. Who can describe the pinnacle of infinite? Now, I will rest my speech by repeating Swamiji's words that say, arise, awake, and stop not till the goal is reached. सुप्रभात, मेरा नाम दिव्य है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। भारत में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि कार्य में होना चाहिए। एक बार स्वामी जी अमेरिका में टहल रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उनका पहला निशाना बिल्कुल सही लगा और एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने बिल्कुल सही लगाए। यह देख लड़के दंग रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हैं? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान एक उसी काम में होना चाहिए। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम पाठ याद कर रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। समाज को आगे की ओर ले जाने के लिए सभी का योगदान होना चाहिए। हमेशा अपना भला सोचने की बजाय हमें किसी न किसी रूप में समाज को भी कुछ देना चाहिए। एक बार भाषणों से थके स्वामी जी अपने निवास स्थान पर आए। उन दिनों वे अपना खाना स्वयं बनाते थे। कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। बच्चे बहुत भूखे थे। तब स्वामी जी ने अपना सारा खाना
सब कुछ देख रही थी, उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आपने अपना सारा खाना उन बच्चों को खिला दिया, अब आप क्या खाएंगे? तो स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है, इस पेट में न सही उस पेट में ही सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। साथ ही साथ स्वामी जी सदा सादा जीवन जीने के पक्षधर थे। वे दूसरों को भौतिक साधनों से दूर रहने के लिए प्रेरित करते थे। आशा है कि आप भी स्वामी जी की तरह सादा जीवन उच्च विचार रखते हुए अपना जीवन सफल बनाएंगे। धन्यवाद। नेशनल यूथ सुप्रभात। मैं हितेन कक्षा 8वीं का छात्र आज आपके सामने युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के संदेश पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नेशनल यूथ डे की प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने महज 39 साल की जिंदगी और 14 साल की पब्लिक लाइफ में देश को एक ऐसी सोच से सजाया रहा है। आने वाली अनगिनत पीढ़ियां भी खुद को इससे ओतप्रोत महसूस करती रहेंगी। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल जी ने अपने लेख के माध्यम से स्वामी देश दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार हुआ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का यह मंत्र उन गुलामी के दिनों में जितना कारगर और प्रेरणादायक था, आज आज़ाद भारत में उतना ही संबंध है। 21वीं सदी का तीसरा दशक आते आते देश दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार हुआ। खुद पर भरोसा तभी खुदा पर भरोसा, स्वामी जी का यह मंत्र सदाबहार है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक खुदा या भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। वे कहते हैं जितना हम दूसरों की मदद करते हैं उतना हमारा दिल साफ होता है। ऐसे लोगों में ईश्वर होता है। अलग अलग धर्म समूह विवेकानंद की सोच जोड़ती है। यही वजह है इस देश में स्वामी विवेकानंद का किसी आधार पर कोई विरोधी नहीं है। स्वामी विवेकानंद की सोच युवा थी, आज भी युवा है। वे कालजयी हैं, कालजयी रहेंगे। धन्यवाद। Present here today, Aikashi of Standard 6, standing in front of you, is going to present my views on Swami Vivekanand Dream India. Swami Vivekanand is the inspiration behind National Youth Day. He has a dream that he has to be a monk. His vision of India was to have a new society. He filled the country with the thoughts whose energy is still felt today. Generations to come will continue to feel this energy. He seems that sending a Christian missionary to a knowledgeable nation, his aim was to regain India freedom with the most powerful weapon. His lessons still inspire the youth. Swamiji caught the Swami Vivekanand taught the people of India to love their nation. He was a gifted child with high thinking. He says, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." Now I would end up my speech with the words of when there was hopeless. When there was hopeless. When there was hopelessness in the, he says this lecture in the Michigan, but the 21st century would undoubtedly be India. Thank you. सुप्रभात। मैं युवराज कक्षा 6ठी का छात्र आपके समक्ष युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद युवाओं की जिज्ञासाओं का समय समय पर स्वामी जी ने समाधान किया है। स्वामी जी ने
स्वामी जी ने सिखाया, ईश्वर पर भरोसा करना सीखो, सत्य के लिए थोड़ा भरोसा करना सीखो। स्वामी जी ने युवाओं को हित और लोभ का अंतर समझाया। स्वामी जी ने युवाओं को संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ने का संदेश दिया। हम अपने प्राचीन ज्ञान को जान सको और अंग्रेजी इसलिए पश्चिम से आए आधुनिक ज्ञान से देशों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो युवाओं में उत्साह उमंग भर देने वाले थे। स्वामी जी ने कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उस विचार के बारे में सोचो, उस विचार के बारे में सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने शरीर के एक हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, यही सफल होने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संदेश दिया कि जो सोचोगे वही हो जाएगा। अगर खुद सोचते हो कि कमजोर हो तो कमजोर बन जाओगे, अगर खुद सोचते हो कि ताकतवर हो तो ताकतवर बन जाओगे। अद्भुत उत्साह उमंग भर देते हैं कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम अपनी मदद स्वयं करो। तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े शत्रु भी। मित्रों, आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर बस यही कहना चाहूँगा कि को हम साकार करें। जय हिंद। Don't forget them. Who is loving you, don't hate them. Who is believing in you, don't cheat them. Good morning, respected judges, teachers, and my dear friends. I, Kanishkaba of Prince, views about what we learned from Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a Hindu monk and one of the most celebrated spiritual leaders of India. He was more than just a spiritual mind. He was a prolific thinker, great orator, and a philosophy of his guru Ramakrishna Paramhansa forward into a new paradigm. He worked tirelessly towards the betterment of the society in servitude of the poor and needy, dedicating his all for his country. He always said, if you are afraid of something, turn around and face it. Never think of running away. In most teachings of Swami Vivekananda is the acceptance that life consists of both the good and the bad. And you must face them and must be strong enough to sail through the bad days for the good ones to come. He also said, life is talk to yourself once a day or you may miss meeting an. This teaching of Swami Vivekananda is something which we all must follow in every week of our life. This is something which we all need to follow and is always good for us. I'm sorry, I do not remember more than that. Thank you. Good morning to all of you. Today, I, Ashish of class 7, is going to tell you about contribution of Ramakrishna Mission for the society. The Ramakrishna Mission was established in 1897 by Swami Vivekananda, the chief disciple of Swami Ramakrishna Paramahansa. The first mutt was then another mutt was started at Belur, which became the central mutt. The organization and working of all the mutts spread all over India and even outside it. The mission has drawn all into ideals and principles from the life and teachings of Sri Ramakrishna. Born in a poor Brahmin family, the childhood name of Sri Ramakrishna was Gadadhar Chattopadhyay. He is regarded as one of the greatest spiritual leaders of India. He was the devotee of Goddess Kali and lived. His disciple represented the very soul of Hinduism and spiritualism. His message of spiritualism contributed remarkably towards strengthening not only Hindu religion and society but also Indian nationalism. He once said, religion is not consent nor in reason. Reason, theories, doctrines
books, religious ceremonies are all helps to religion. Religion consists in realization. He believed in fundamental unity of all religions. Ramakrishna Mission is a Hindu religious and spiritual organization which forms a worldwide spiritual movement or known as Ramakrishna movement or the Vedanta movement. Thank you. Before he left London, one of his British friends put this question to him: Swami, how do you now like your motherland after 4 years of experience of the luxurious, glorious, powerful West? Swamiji said, India I loved before I came away. The very air is now to me holy of pilgrimage, the Tirtha. Good morning everyone. Today I, Ritika, standing here to present my views on the topic Swami Vivekananda's concept of patriotism. Swami Vivekananda was a dreamer. He dreamt big day and night. But the only theme of his dream was India. This one word stayed extraordinary in the deepest region of his heart. His love for our motherland was the singular factor which held him tied to this earth. He was a born yogi, great contemplator. Diving deep into meditation was the natural depth of his mind. Swami Vivekananda knew everything about India like the palm of his hand. He said that our scarred motherland is a land of religion and philosophy. In 1892, Swamiji was visiting Trivandrum, the capital of the then princely state of Travancore. This was right before he visited to Kanyakumari, where during the Christmas of 1892, sitting on the last bit of Indian rock, he meditated. As he also saw the immediate course action to be taken for the conditions of our country. According to Swamiji, practical patriotism means not a mere sentiment or even emotion of the love of the motherland, but the passion to serve our fellow countrymen. I have gone all over India, the ignorance, mystery and squalor of our people. My whole soul is at fire, and I am burning with a fierce desire to change such evil conditions. To find God, serve man. To reach Narayana, you must serve the Daridra Narayans, the starving millions of India. First condition for practical patriotism is the feeling for Indian masses, and feeling has to be followed by thinking or doing. But the three qualities that one must cultivate in order to work selflessly for the nation are conviction in powers of goodness, absence of jealousy and suspicion, जिसमें सब देश के लिए प्यार नहीं. धन्यवाद. जिस शिक्षा से हम अपना जीवन विचारों का तालमेल कर सके और चरित्र गठन कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है. मेरे इस विचार से आज की इस प्रतियोगिता में मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श शिक्षा को विचारों को लेकर उपस्थित हुई हूँ. प्रस्तुत है मेरे विचार. स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा द्वारा व्यक्ति आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनता है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी हमेशा इस बात का ध्यान देते थे कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करनी है और चरित्र का सही निर्माण करने की शिक्षा की व्याख्या व्यक्ति के गुण और क्षमताएं के विकास को ही शिक्षा कहती है. शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते थे जिसमें वे अपनी संस्कृति और आधुनिकता दोनों को एक साथ रख सके. इसके साथ स्वामी विवेकानंद जी व्यवसायिक शिक्षा के पक्ष में भी थे जिससे निर्धनता दूर हो सके. स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है. जिस प्रकार दही में मक्खन दिखाई नहीं देता, जब हम दही को मथेंगे तब माखन रूपी ज्ञान अपने आप बाहर आएगा. हमें अपनी शक्ति के प्रयोग शिक्षा से व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और आत्मविश्वास से वो अपने अंदर के ज्ञान को पहचान पाता है. स्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में अपनी एक रुचि होती है, बस हमें उस रुचि को पहचानना होगा. स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन एकाग्र कर लेता है उनमें ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है. कार्य की सफलता ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की सफलता एकाग्रता की सीमा पर आधारित है. स्वामी जी कहते हैं
स्वामी जी का विश्वास था कि कोई भी देश या राष्ट्र महिलाओं को समाज में उचित दर्जा दिए बिना सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, जिसका परिणाम यह भी है कि बालक की तरह बालिकाओं को भी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, वो जिसके कारण वह आत्मनिर्भर बन सके और समस्या में अपना निर्णय खुद ले सके, जिसके कारण उनमें एक आदर्श चरित्र का विकास होगा। मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा का न होना अज्ञानता का मूल कारण है। इसके कारण कई सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। अंत में मैं उनका ध्येय वाक्य बोलकर यहाँ से विदा लेती हूँ। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता में ही नहीं विश्वास करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का मुझे अभिमान है। ये तथ्य है स्वामी विवेकानंद जी के, जिन पर मैं श्रेणी 3 से खुशी अपने विचार भारत को अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए पर व्यक्त करने जा रही हूँ। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित नमन। धर्म एक अत्यंत छोटा शब्द है, परंतु इसका अर्थ अत्यंत विस्तृत है। प्राचीन युग से चले आ रहे केवल 3 ही धर्म संसार में विद्यमान हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। यहूदी धर्म ईसाई धर्म को आत्मसात नहीं कर सका। जब ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्म स्थान से इसे निर्वासित कर दिया गया, वहां भारत में एक के बाद एक न जाने कितने धर्म संप्रदायों का उदय हुआ, जिन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिला दिया। परंतु जब ये सारा कोलाहल शांत हुआ, तब इन समस्त के विराट काया ने इन्हें चूस लिया, आत्मसात कर लिया और अपने में बचा लिया। हिंदू जाति ने अपना धर्म श्रुति वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है। वेदों का अर्थ पुस्तक नहीं है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजने वाले दृढ़ता और शक्ति से एक दूसरे का साथ देते हैं। वह एक वर्ष के लोगों की तो बात ही क्या, भाई भाई में देखने को नहीं मिलता है। विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को पूरी ईमानदारी के साथ सामने रखा। उन्होंने हिंदू धर्म के सरलतम तथ्यों को भी प्रस्तुत किया। वेदों में प्रकृति के हर तत्व के रहस्य और उसके प्रभाव को उजागर किया है। इसीलिए वेदों में प्रकृति को ईश्वर का साक्षात रूप मानकर उसके हर रूप की वंदना की गई है। किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म ही धर्म है। कर्म के मनुष्यता होना व्यर्थ है। मानव का प्रयास ही कर्म है और कर्म ही मानव का असली धर्म है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर अकेला होते हुए भी सर्वव्यापक है। सभी को ईश्वरमय और ईश्वरीय समझना ही सत्य, धर्म, न्याय और मानवता की सोच को बढ़ावा देता है। धर्म के ज्ञान के बगैर जीवन अव्यवस्थित और अराजक होता है। इसीलिए हम अपने जीवन को धर्म के बिना आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लगाम के बिना घोड़े जैसा होता है। धर्म है तो हम हैं। हमारे आने वाले संस्कार से युक्त बच्चे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है। धर्म को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धर्म नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो समाज नहीं, समाज नहीं तो राष्ट्र नहीं। यही शिक्षा है हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, जो हम आज उनकी जयंती पर इकट्ठे होकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक बार आप सब इस विषय पर विचार करके देखिए कि भारत अपना धर्म क्यों छोड़े। एक ऐसा धर्म जो पूरे संसार को परिवार मानता है, भरपूर सागर है और जो अपने वेदों और पुराणों से आज के लोगों को सही मार्ग दिखाता है। क्या एक ऐसे धर्म को छोड़ना सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चे भारतीय के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की। अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, नमस्कार। आज मैं मयंकर आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में स्वामी आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बार किसी शख्स ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा,
कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। युवाओं के दिलों में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक नई उमंग पैदा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात तथा प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने ही वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया था। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिकता की ओर झुके से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए जरूरतमंद लोगों की सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना ही था। स्वामी विवेकानंद जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का विकास हो। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उस बातों और ज्ञान को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो हमें मजबूत बनाती है, और उन विचारों को दूर करने की आवश्यकता है जो हमें कमजोर बनाती है। जैसा हम खुद के बारे में सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे। यदि हम अपने आप को निर्बल मानेंगे तो हम निर्बल ही बन जाएंगे, वह सबल मानेंगे। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति सुनाना चाहूंगा जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद। गर्व से हम भारत की गौरव गाथा गाते हैं। नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद के आदर्श शिक्षा पर विचार, इस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। आशा है कि आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बेहद कम उम्र में अपनी ज्ञान का लोहा मनवाने वाले स्वामी विवेकानंद की महानता और दिव्यता को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि महोदय, कर्म की महानता को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। स्वामी जी की भव्य और दिव्य आकृति अनायास से आकर्षित करती थी। उनकी वाणी और विद्या का ना तो कोई जोड़ में की है जब स्वामी जी धर्म के प्रचार के लिए शिकागो जाना चाहते थे, जिसके लिए अपनी गुरु माँ की इजाजत लेने पहुंचे। माँ कुछ काम कर रही थी तो माँ ने स्वामी जी को सामने पड़ा चाकू उठा देने के लिए कहा। स्वामी जी ने चाकू उठाकर माँ को दिया। तब माँ ने कहा, अब तुम धर्म के प्रचार के लायक हो गए हो, जाओ धर्म का प्रचार करो। यह सुनकर स्वामी जी हैरान होकर बोले, ना ही आपने मेरी कोई परीक्षा ली, ना ही कि मैं धर्म का प्रचार करने के लायक हो गया हूं। तब माँ ने स्वामी जी से पूछा कि तुमने चाकू के धार वाले हिस्से को अपने हाथ में रखकर लकड़ी के सिरे वाले हिस्से को मेरी तरफ क्यों बढ़ाया? तब माँ ने उत्तर दिया, तब स्वामी जी ने कहा, क्योंकि धार वाले हिस्से से आपको चोट लग सकती थी। माँ ने उत्तर दिया, जब किसी के मन में दूसरों को चोट ना पहुंचाने। प्रणाम करके स्वामी जी शिकागो चले गए। वहां एक अंग्रेज ने स्वामी जी को हेलो कहा। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अंग्रेज ने सोचा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। उसने एक बार फिर स्वामी जी से टूटी फूटी हिंदी में पूछा, आप कैसे हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई एम फाइन थैंक यू। वहां खड़े सभी अंग्रेज हैरान थे। उन्हीं में से एक अंग्रेज ने पूछा कि जब हमने आपसे अंग्रेजी में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में बात की तो आपने अंग्रेजी में उत्तर दिया, ऐसा क्यों? तब स्वामी जी बड़े ही सरल शब्दों में कहते हैं, जब माँ का सम्मान किया और मैंने अपनी मातृभाषा में बात कर अपनी माँ का सम्मान किया, इसी तरह दोनों परिस्थितियों में दोनों की मातृभाषा को बराबर बराबर सम्मान मिला। एक समय उन्होंने कहा था, धन दौलत वो है जिसे किसी की जरूरत पर खर्च किया जाए, अन्यथा वह कूड़े का ढेर है।
ये आदर्श उनके जीवन में केवल शब्द नहीं थे, वे इन आदर्शों पर चले और पूरा जीवन समाज पर न्यौछावर कर दिया। अगर भारत का युवा उनके विचारों, उनके आदर्शों को आत्मसात कर ले तो भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। अंत नानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता हम सब मांगते तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। भाषाशु मुख्या दिव्या मधुरम गिरवाण भारती। गिरवाण भारती अर्थात भगवान की भाषा संस्कृत है, दिव्य है और सबसे हितात्मक भाषा है। संस्कृत में कविता मधुर है और जिसमें सबसे अच्छी बातें प्रमुख स्थान पर हैं। निर्णायक मंडल, शिक्षकों और सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं मानसी कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी को के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि एक बार भगवान बोले और उन्होंने संस्कृत में बात की और वह एक दिव्य भाषा है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में सभी विद्याएं संस्कृत में होने के कारण विद्वानों और आम लोगों के बीच एक अथाह खाई पैदा हो गई है। ब्राह्मणों की संस्कृत को देखें, पतंजलि की महाभाष्य और अंत में आचार्य शंकर की महाभाष्य में आप हाल ही की संस्कृत को देखें। आप समझ जाएंगे कि जीवित व्यक्ति जीवित भाषा बोलता है और मृत व्यक्ति मृत। भारत में सभी प्रतिष्ठा और संस्कृत एक साथ चलती है। संस्कृत ईश्वर की भाषा है। संस्कृत भाषा यह है जो मनुष्य को इस जीवन में भी भगवान के होने का एहसास दिलाती है। पुराण उस समय की भाषा में लिखे गए जिसे हम आधुनिक संस्कृत कहते हैं, ये थी ना कि विद्वानों के लिए। संस्कृत की ध्वनि ही संगीतमय है। संस्कृत के शब्दों की ध्वनि ही जाति को शक्ति, प्रतिष्ठा और ताकत देती है। संस्कृत भाषा इतनी जटिल है, वेदों की भाषा इतनी प्राचीन है और संस्कृत की भाषा इतनी ज़्यादा परिपूर्ण है कि इसके एक शब्द के अर्थ के संबंध में कई सदियों तक संस्कृत भाषा शास्त्र में हमारी संस्कृत को सभी यूरोपीय भाषाओं की नींव माना गया है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा का सिर्फ यह शब्द जाल है और कुछ नहीं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि संस्कृत के बिना मैं एक भारतीय हूँ और हर भारतीय मेरा भाई है। अज्ञानी भारतीय, बेसहारा भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, हर भारतीय मेरा भाई है। भारत का समाज मेरे बचपन प्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल व श्रोतागण, आज मैं मानसी कक्षा 10वीं की छात्रा आपके समक्ष अपने विचार स्वामी विवेकानंद के देश प्रेम पर साझा करना चाहती हूँ। समय समय पर तमाम ऐसे व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए हैं जिन्होंने न से समस्त विश्व में एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है। ऐसे ही एक महापुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को प्रोत्साहित करने में सबसे आगे थे। उनकी शिक्षाएं हमें न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि गलत राहों पर जाने से भी रोकती है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे देश प्रेमी थे, परंतु उनका देश प्रेम समावेशी तथा करुणामय था। जब भी वे देश भ्रमण पर निकलते, घोर अज्ञानता, गरीबी व सामाजिक असमानताओं को देखकर दुखी हो जाते। इस पर विचार साझा करते हुए एक बार उन्होंने कहा, व्यवहारिक देशभक्ति का अर्थ बल्कि अपने देशवासियों के प्रति सेवा करने का जुनून है।
मैं पूरे भारत में पैदल गया हूँ और अपनी आंखों से अपने लोगों की अज्ञानता व बदहाली को देखा है। मेरी पूरी आत्मा में आग है और मैं एक तीव्र इच्छा से जल रहा हूँ। इन शब्दों से उनका आशय था कि अध्यात्म, सेवा भाव व त्याग को देश प्रेम का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने भारत के लिए आध्यात्मिक लक्ष्य शक्ति तय नियति होती है जिसे उसे पाना होता है। हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जिसे उसे पहुंचाना होता है। वह हर राष्ट्र के पास एक मिशन होता है जिसे उसे हासिल करना होता है। हमें हमारे नस्ल के मिश्र को समझना होगा, उस नियति को समझना होगा जिसे हमें पाना है। वह विभिन्न नस्लों के बीच जाकर सौहार्द बढ़ाने की भूमिका को भी जानना होगा। हम भारतीयों को अपने इतिहास, संस्कृति व धर्म पर गर्व होना चाहिए। उस समय के मद्देनजर इनमें सुधार लाने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करने चाहिए। इसीलिए वे कहकर गए हैं, जागो, उठो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न करो। इससे उनका आशय था शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों में सनातन मूल्यों के प्रति आस्था को पैदा करना। यही मूल्य एक दिव्य चरित्र वाले व्यक्ति व एक मजबूत विद्यार्थी की नींव बनते हैं और ऐसा व्यक्ति ही अपने व अपने देश के लिए संघर्ष करता है। स्वामी विवेकानंद के वचन आज भी विस्मरणीय हैं। आज भी चर्चा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि भले ही स्वामी विवेकानंद आज हमारे बीच साक्षात रूप में नहीं है, परंतु उनके विचारों में इतनी ताकत है, प्रेरणा है, शक्ति है कि आज भी हम युवाओं को संगठित करके राष्ट्र निर्माण का रास्ता दिखा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद एवं शुभ दिन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद देश के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्हें हिंदू धर्म के प्रवर्तक के रूप में भी पूरे विश्व में जाना जाता है। एक किस्से के जरिए बताने जा रहा हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आप तो एक सन्यासी हैं और एक सन्यासी होने के नाते आपको अपने देश की मोह माया को त्याग कर संपूर्ण विश्व को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इस पर स्वामी जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, अरे भाई, से प्यार कैसे करेगा? ठीक वैसे ही एक सन्यासी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपनी मातृभूमि से अटूट प्रेम का सर्जन करे। जो अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपने देश से प्रेम नहीं कर सकता, वह पूरे विश्व से कैसे जी की जो उन्हें अपने देश से जोड़कर रखती थी। और इसी सोच के साथ उन्होंने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंब का पाठ सिखाया था। जी स्वामी जी कहा, चाहे वह अनजान हो, अज्ञानी हो या गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए सभी सामान्य है। और वे ये क्या करते थे, मेरे लिए सभी सामान्य है। ठीक वैसे ही उन्होंने अपना पूरा जीवन देशवासियों और देश को समर्पित कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि इन पंक्तियों से आपको कुछ सीख मिली होगी और आप भी अपने जीवन में इसे religion which has taught us the both tolerance and universal acceptance. We believe not only in the universal toleration, but we accept all the religion as a truth. Said I, Paras from St. Francis Xavier School of Class 9, standing in front of you all to express Swami Vivekananda's views on the topic why the India should never give up a religion. To Vivekananda, the religion was not a mere theory, but an actual practice to be applied in the life, raising the brute into the man and the man into the God, stating that it is being and becoming changed into what it believes. He is known as worldwide for introducing the philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world and Hinduism to the world, and drawing it respect for the Indian culture, as the many do know that this was never his intention. Vivekananda was not just a religious saint, but an Vedantic teacher propounding the concept of religion, and a yet true internationalist who was the head of his time, a social reform activist and an educationalist, a humanist who believed in the innate greatness of human beings. And in his glaring call at the Chicago element, he emphasized the fundamental unit of the religion. And he urged the followers of the various religions to be true to their religions and not to emphasize. Now I will end up my words with the Swami Vivekananda message that the real story of India is the unearthed and
it will be proved that, as in the matter of the religion, India is the primary guru of all the world. Thank you. सुप्रभात। मैं दिया को अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए विषय पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा और उन्होंने अल्प आयु से लेकर अपने जीवन काल तक जिस मार्ग को अपनाया उसे आज के युवा प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं। उनको पसंद करने वाले देश में ही नहीं विदेश में भी हैं। स्वामी जी ने कहा, गर्व से कहो तुम हिंदू हो। और स्वामी विवेकानंद ने इस बात को पहचाना केवल एक हिंदू का कम होना नहीं बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है। कश्मीर में यही देखते हैं, वहाँ के मुसलमान अखबारों में यह विज्ञापन छपवाते हैं कि हिंदुस्तान के अनपढ़, जाहिल, जादूगरों और सांप सपेरों के देश को सभ्य बनाने तथा बाइबल का उपदेश देने के लिए दान दीजिए। पर स्वामी जी ने क्रूर मजहबी आक्रमण के विरुद्ध निर्भीकता से विरोध किया और उन्होंने अपने तर्कपूर्ण भाषणों से पश्चिमी समाज को यह बताया कि पश्चिम के लोगों को यदि कोई मनुष्यता का पाठ पढ़ा सकता है और उनके जीवन में शांति, परोपकार, सद्भाव तथा दूसरे मत के प्रति आदर की भावना ला सकता है तो वह है भारत का हिंदू धर्म और दर्शन। सिर्फ 30 वर्ष की आयु में बिना साधन, बिना परिचय वे अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। 2 महीने की समुद्री यात्रा पर सर्दी में पहनने को कपड़े नहीं थे। शिकागो के धर्म संसद में बोलना था पर उसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं थी। लेकिन अगर निश्चय सत्य हो, निष्ठा अचल हो तो वो ईश्वर भी मदद करता है। कल्पना करिए, 7000 बुद्धिजीवियों से भरा सभागार, विश्व के महान धर्मों के विख्यात प्रतिनिधि विद्वान मंच पर विराजमान, हिंदू धर्म, दर्शन और वेदांत पर बोलने के लिए केवल एक 30 वर्षीय युवा सन्यासी। उन्होंने पहला ही वाक्य बोला, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इस एक संबोधन से ही सभा में बैठे लोग इतने रोमांचित हो गए कि 2 मिनट तक तालियां बजती रही, 2 मिनट तक। और तालियों की गड़गड़ाहट बंद होने के बाद उन्होंने भारत, हिंदू धर्म और भारतीय जन के मन में बसी सहिष्णुता, उदारता और सर्वधर्म संभाव का जो अद्भुत वर्णन किया, केवल 7 मिनट में उन्होंने दृष्टि ही बदल गई। स्वामी विवेकानंद ने गर्व एवं अभिमान के साथ भारत के हिंदू धर्म की महानता और गौरव का जो परिचय अमेरिका के सुसंस्कृत समाज को दिया वह युग परिवर्तनकारी था। स्वामी जी ने भारत का संदेश विश्व को दिया कि हम किसी को पापी नहीं मानते बल्कि सबको अमृत का पुत्र और पुत्री मानते हैं। सब में उस एक ईश्वर का दर्शन करते हैं जो विभिन्न रूपों और नामों से जाना जाता है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको उनका स्वदेश मंत्र बताना चाहूँगी। घर घर में, हर विद्यालय में, संस्थान में पढ़ने मनन योग्य है, जिसमें उन्होंने कहा कि मत भूलो कि दरिद्र, मेहतर, अज्ञानी तुम्हारे रक्त, तुम्हारे भाई हैं। गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कितने शक्तिशाली शब्द, कैसा था वो सन्यासी जो सारे भारत को जोड़ गया। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण विराम देते हुए यह आशा करती हूँ कि आप भी स्वामी जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाएंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। धन्यवाद। भारत को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, पर स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उन्हें हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। केवल 30 वर्ष की आयु में ही शिकागो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में निर्णायक सभा के सामने यह साबित कर दिया कि हिंदू धर्म के सिद्धांत सर्वव्यापी थे और वे हिंदू धर्म के लिए केवल उसकी सहिष्णुता के लिए नहीं बल्कि उसकी सार्वभौमिक स्वीकृति के लिए भी खड़े थे। धर्म नहीं भारत के रोने की जरूरत। उनके अनुसार भारतीयों को किसी धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। 1893 में विश्व धर्म सांसद में भारत और हिंदू पूर्वी और पश्चिमी के प्रतिनिधियों के पहले विश्व सम्मेलन को चिन्हित किया। इसके अलावा ऐसे व्याख्यान दिए जिसमें विशिष्ट धार्मिक मुद्दों को शामिल किया गया। विवेकानंद के लिए धर्म सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था बल्कि धर्म जीवन में प्रयोग होने वाला एक वास्तविक अभ्यास था, जिसका मकसद मनुष्य को मनुष्य में और मनुष्य को ईश्वर में ऊपर उठाना था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद का अध्ययन करें, क्योंकि उनमें सब कुछ सकारात्मक है और कुछ भी नकारात्मक नहीं है।
बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू धर्म की महिमा को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी लेने के लिए विवेकानंद की प्रशंसा की। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सी राजगोपालाचारी के अनुसार विवेकानंद ने भारत और हिंदू धर्म को बचाया है। विवेकानंद पूरे देश में घूमते रहे और उनकी आवाज भारत के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी से लेकर बंगाल तक सुनाई दी। विवेकानंद एक ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने मानवता के लिए रामकृष्ण मिशन भी शुरू किया। विवेकानंद से पहले कई सुधारकों ने भारतीय जनता की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस तरह सफल नहीं हुआ जैसे वे हुए। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने अपना दिल खोल दिया और धर्म का ज्ञान और भावना लोगों पर उतेरा। इससे वे सूचना के अधिकार के पहले प्रस्तावक बने। आगे आने वाले समय में उनकी शिक्षाओं को हर मंच पर याद किया जाने लगा। उनके लिए वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं था। विवेकानंद कहते थे कि भारत को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है और जब तक ये शक्ति सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। थैंक यू। Everything. Kali in defending his ideals. He is Hanuman in his devotion to his master, Brahman in meditation and Rudra in his action. He is a man who can never be defined in a single word, and for doing what he did for the society, he can never be thanked in words. Swamiji never wanted people to thank him for his deeds, to follow his ideals, to bring in reality the society that Swamiji dreamt of. One of the very prominent ideals of Swamiji was women empowerment. He always wanted women is as courageous as men, and for this reason, he always wanted women to know their worth and come up as a strong human being. He believed that Atma, the soul, has no sex, no caste, and no imperfection. When human soul does not have any differences, how can we treat people? One of his famous statements, in which he reflects the importance of women for the development of the country, says, "With 500 men, the conquest of India might take 50 years. With as many women, not more than a few weeks. It is very necessary to develop both men and women equally to attain maximum development and welfare society," Swamiji believed. Warning people about the condition that the world might face, he says, "There is no hope for that family or country where there is no estimation of women, where they live in sadness. For this reason, they have to be raised first." Addressing the women, he says, "To the women of this country, I would say exactly what I say to the men. Believe in India and in our Indian faith. Be strong and hopeful and unashamed." He wanted women to speak for themselves and to as a self-dependent individual, he says, "The natural ambition of women is through marriage to climb up, leaning upon a man. But those days are gone. You shall be great without the help of man, just as you are." Thank you. I would like to invite our chief guest to share his views regarding today's experience and encourage each one of us. Please, sir. नमस्ते। जो आपका जो प्रोग्राम है, मैंने आर्मी के अंदर बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं देखा। अगर मैं जज की जगह पर होता तो शायद मेरे लिए मैं कह नहीं सकता, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं अभी फिलहाल जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर डिप्लॉय हूँ और मेरे को ऐसा प्रोग्राम देखने का बहुत शीतल ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा, क्योंकि सेना में होता है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया प्रोग्राम बच्चे और वो करके दिखाएंगे। शायद मेरे जीवन में कभी दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलेगा। मैं आपको दोबारा से धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए जो बच्चों ने इतना अच्छा स्पीच दिया, एक से एक बढ़कर बच्चे, जितना छोटा उतना खोटा बोलते हैं, जितने छोटे बच्चे उन्होंने उतना ज़्यादा
जोश होश, मेरे को आप लोगों में स्वामी विवेकानंद की झलक दिखाई दे रही है। आने वाले समय में मैं यही चाहूँगा कि आप जो विचार यहाँ पर बता रहे थे उनको अपने जीवन में लागू करें और उनको अमल करें। सबसे पहले शुरुआत होती है अपने माता, अपने टीचर, जो आपके अध्यापक हैं, जो उन्होंने जो भी आपको शिक्षा दी है उनका अनुसरण करें। फिर आपका विलेज आता है, फिर आपका सिटी टाउन जो भी है, फिर आपका स्टेट और फिर भारत देश और फिर दुनिया। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचार पूरे भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए किए, सेम उसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप भी इन विचारों में खरे उतरेंगे। और मैं दोबारा से धन्यवाद बच्चों का, जो कि आप लोगों ने मेरे को इस काबिल समझा, इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया और अपना सब कीमती समय दिया। धन्यवाद। Ignited budding orators. Nobody is a born winner. To be a winner and aspire to win. For me, you all are winner. So now let's see according to the judges. To facilitate the position holders in the senior category, I would like to call upon our chief guest, Mr. Sunil sir. Please, sir. देश उठेगा अपने पेड़ों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा, देश उठेगा अपने पेड़ों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा, देश उठेगा। The show must go on, right? Clapping should come. परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। मृग तृष्णा में मति भटि को छीना सब कुछ जा सकता है। मायावी संसार तत्व में कदम बढ़ाओ ध्यान से, अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से। देश उठेगा, देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगा। Congratulations, sir. We are so proud to have you. Now I take this opportunity to call upon Vivek Nandini Sheetal, President SVA SAR, to please extend the vote of thanks. Please, ma'am. Please welcome her with a huge round of applause. I'm grateful to God, first of all, successful one. I thank our Honorable Chief Guest who has got his time spared for this event. Despite his busy schedule as well as the restrictions which have been imposed in the Kent area, he has somehow managed to grace the occasion. So thank you very much, sir, that you came here. The real heroes of the day today, who have worked so hard to find the gems amongst you, and I'm pretty happy with the decisions. I felt like as per the rules and their expressions and everything.
I'm thankful to all the principals of these schools who have sent their participants here. I'm thankful to all the participants that they have prepared so well and they have dared to come upon the stage and they have spoken so well. If we talk about, I'm thankful to Shri Ashok Hooda ji as well, who is a great personality always with us to guide us whenever required. So I'm really very happy that he has. If we talk about teachings of Swami Vivekananda, you have spoken so well. What I want to say, Swami Vivekananda wanted you to be unselfish, work hard, never be a fanatic, never give up your religion. Nowadays in present day society, if you see so many people, you will find wandering here and there just to tell you that whatever gods you believe are just fantasies and we will tell you the real path to attain to God. So that Vivekananda didn't want. That was the reason that he did not establish any separate religion. He only was in the favor of improvement and he wanted to be modern, but not leaving your own culture. Moreover, always remember that those who have nothing to do in their life, they only fight in the name of religion and caste. There is a very small story which was mentioned in Ramakrishna's book, which I read and I liked it, and generally I share this with students. How nicely it is proven that fighting for the path to attain God is just such a useless thing which anybody can do. It mentions, the story tells that there were 4 people. They had to reach the 5th floor of a building. One of them said, I love jumping. I'll just take a huge reach there on the 4th floor. Other said, okay, that is your wish. You try that. One said, no, I like jogging. I would like to go by the stairs. I like that activity. That is good for health as well. So he went by the stairs. Another said, no, I am more adventurous. I'll use these nails. I will fit in the wall first and then I'll climb to the 4th floor this way. The 4th one said, I will take a rope, throw it on the top, then I'll climb up the rope. So they reached there. Now just imagine, if they would have started fighting earlier only, that this path is better. If the rope fellow says that no, rope is only the best one and everybody should climb that way. So was there any sense in that? So similarly, whatever these religions are there in India, they all, even in the whole world, they just tell you the path to reach God. So before reaching there and we start fighting, my path is the best one, so that is totally useless. So always have faith in your religion and respect other religions as well. Other thing which I want to mention, that like give up our culture, we should read Sanskrit, we should follow our culture. See, we are not against modernity, that you can be modern. As we have to speak English, this is lingua franca. We have no other option. Moreover, most of the things now present day when you go for interview in jobs and everywhere you are this, mean that you have to forget your own Sanskrit. Always chant some mantras of Sanskrit. You can just have a single sentence. One thing is speaking, one is that you are practically doing it. Here I am not going to be the person who is simply just giving you a speech in English that you should read Sanskrit, you should chant Sanskrit. I will chant one shloka. Because the theme of the day is woman empowerment. So Mahishasur Mardani is symbol of woman empowerment, where Mahishasur Mardani, goddess, Bhagavati, is killing the demons. So I will chant one shloka in Sanskrit. Then you will say whatever I am saying, that you should not give up your Sanskrit and we can even speak English. We can combine both. So here is that shloka, then I will end my speech. I Giri Nandini Nandini